Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaskar, namaste, good afternoon. Wow, this is a great occasion for all of us today that we are here and in this large gathering. It's an amazing thing which got happened today in this 2023 for us, especially for the business community of Muslims, especially in Bangalore. And we know that this is not an ordinary initiative which has been taken by MIA. Um, it's a dream come true. Basically, I have been witnessing such events and last lot of such big gatherings across the world. I've been part of many delegations, and we have seen that other communities also they conduct such kind of programs and events. I was witnessing those events, but unfortunately, in our business community, it is very rare to witness. Basically, we've been witnessing activities which are connected to our religious functions or festivals. हम लोग इज्तिमा भी कर लेते हैं, हम लोग जो है बहुत सारे मजालिसों में हमारे जो है गैदरिंग होती है, लेकिन बिजनेस की गैदरिंग अक्सर नहीं होता है। तो मैं एक शुक्रगुजार हूँ MIA वालों का कि इन्होंने एक इतना बड़ा कदम उठाया, शेर दिल कदम उठाया। ये मामूली काम नहीं है, एक बहुत करेजियस स्टेप है कि इतना बड़ा इवेंट को ऑर्गेनाइज करना। एंड इट्स ए रियली आई सैल्यूट देयर स्पिरिट and for their hard work what they have done. Excellent guys, you deserve a big applause. From my end, I represent an organization called IACCB. IACCB is the Indian Islamic Chamber of Commerce and Bureau. We are also having a similar vision the way MIA has, so we are well connected and we are like brothers. तो ये बोल सकते हैं कि MIA हमारा बड़ा भाई है। 25 साल से 20 साल से वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, हम लोग जो है 2 साल 2.5 साल से शुरू किए हैं। पर उनका जो मेहनत है आज वो रंग लाई है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे दिल से दुआ है कि जो मकसद से इस इवेंट को इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया उस पर उनको कामयाबी मिले और उनकी मेहनत को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरा जो ये ओकेशन में नहीं होना वहाँ पर मुझे बहुत अफसोस है। सो आई पर्सनली अपोलोजाइज दैट आई कुड नॉट अटेंड दिस इवेंट personally. In fact, I am a big loser that not attending this event. Indeed, it's a dream come true for me also that I was thinking that somewhere we have to plan a large event like this and big gathering wherein I should be leading from the front. But alhamdulillah, it's a MIA who took the initiative and they have made it happen. So it's our job now. We are here to support them. We have to make it happen, inshallah, and this initiative will definitely show new directions and it will open new doors of opportunities for all of us. Today I have been asked to talk on not entrepreneurship, especially they have requested me to give a speech, but basically I believe that since it's a MIA's vision is entrepreneurship and is also our vision. In fact, it should be the vision of all of us, इंक्लूडिंग यूअर्स। तो मुझे लगता है कि मुझे उसी पे बात करना है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। 10-15 मिनट का मुझे वक्त दिया गया है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कुछ चीज़ों को आपके सामने रखने की। मेरी गुजारिश है कि आप लोगों को अगर किसी जगह अगर आपको लगे कि मैं बहुत खींच रहा हूँ या कुछ ज़्यादा बोल रहा हूँ तो ज़ोर से तालियां मार दीजिए 2-3 बार, तो मैं रुक जाऊँगा इंशाल्लाह। तो ये एक मकसद था कि एंटरप्रेन्योरशिप का जो गोल है उसको सेट करना चाहिए हम लोगों को कि भाई हमारे लाइफ में हम लोग बहुत सारी चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं। हमसे बचपन से सिखाया जाता है कि आप लोगों को जो है लोगों का ख्याल रखना है, पड़ोसियों का ख्याल रखना है, गरीबों का ख्याल रखना है। हमारे कौम में तो ये हर खून खून में भरा हुआ है, रग रग में भरा हुआ है कि हम लोगों को जोश के साथ मदद करनी चाहिए लोगों की और उनको हेल्प करना चाहिए, और इसमें करते भी हैं हम अल्हम्दुलिल्लाह। जब भी जब इंसानियत का मामला आता है तो जब कोई परेशानी होती है कौम में या मुल्क में तो मुसलमान जो है बहुत जज्बाती है और अपना जान माल सब कुछ लगा देता है उसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह ये हम लोग कई बार तो ऐसे भी हैं कि हम लोगों ने मिसाल कायम किया है। कोविड-19 के क्राइसिस में भी हमारा कौम जो है बहुत आगे बढ़ चढ़ के काम किया। तो मेरा ये एक पॉइंट है जो इस पे मैं आई एम ट्राइंग टू ड्राइव इट। सो बेसिकली वी हैव बीन टोल्ड दैट वी हैव टू सर्व द कम्युनिटी। तो इसमें क्या होता है, एक बड़ा मजमा जो है हमारा यंगस्टर्स का स्पेशली इसमें बहुत शामिल होके उस पर काम पे लग जाता है। तो इसमें मुझे लग रहा है कि कुछ चीज़ों को हमको सही करना है।
कि आज की तारीख में अगर देखा जाए कि यंगस्टर्स जो हैं वो यूथ जो है वो एक इकोनॉमिक रोड मैप डेवलप करता है और सेट करता है। और हमारे जो इंडिया, स्पेशली इंडिया इज़ नोन फॉर one of the most developing country. In fact, we rank number 2 now in the world in terms of developing countries. In of course the opportunities. I'm not talking about developing countries in terms of opportunities as a whole. We stand number 2 after KSA, Saudi Kingdom of Saudi Arabia. So Saudi Arabia आज की तारीख में one of the fastest growing economy है, तो हमारा नंबर 2 है। और इसमें जो है बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ जो है कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जीडीपी हमारा वन ऑफ द बेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड टुडे, बट अनफॉर्चुनेटली आवर कम्युनिटी पर से वी आर होल्डिंग अराउंड 20% इन आवर पॉपुलेशन ओवरऑल, 22-23% बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव आवर रोल टू प्ले इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन इकोनॉमी। हमारा कंट्रीब्यूशन जो है इकोनॉमिकली बहुत वीक है। हम लोग जो है ज़्यादा टैक्स पेयर्स नहीं हैं, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलिस्ट में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। हमारे यहाँ इंडिया इंक जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमारी पार्टिसिपेशन बहुत कम है। तो ये सब चीज़ों का जो है फ़िक्र हमको है और हम सबको होनी भी चाहिए। तो मुझे लग रहा है कि यूथ जो है ये डायरेक्शन देता है, इस यूथ का इस्तेमाल सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। मैं अक्सर नोट करता हूँ कि हमारे यंगस्टर्स को जो है हम लोग डोनेशन और चैरिटेबल हाउस में इस्तेमाल कर लेते हैं। उनका एज जो है 18 से 30-35 साल के बीच में जो दुनिया में बहुत सारे मौक़ों का इस्तेमाल करके उनको बिज़नेस स्टैब्लिश करने का और उनके अपनी कैपेसिटी को आज़माने का और स्किल सेट को आज़माने का और अपने विजन को अचीव करने का जब उनका मौका होता है, अब उनको जो है डिस्ट्रैक्ट कर जाते हैं एक चैरिटेबल ट्रस्ट और NGOs में इंट्रोड्यूस करा के, जहाँ पे जो है डोनेशन का मामला शुरू हो जाता है। जब वो डोनेशन करने पे ऑर्गेनाइजेशन के साथ घुस जाता है तो उसका जो है पूरा वक्त जो है पैसे कलेक्ट करना और पैसे बांटने में और हेल्प करने में लग जाता है। ये जो मांगने वालों की हमारे यहाँ कमी नहीं है, बहुत ज़्यादा है, तादाद तो बहुत बड़ी है, और देने वाले जो है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम है, लेकिन देते हैं। तो ये देने और लेने के बीच में इसका दायरा जो है बीच का इंटरमीडिएटरी का रोल होता है, जो ये करते 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 अपना पूरा विजन भूल जाता है। अपनी ज़िंदगी का जो बहुत बड़ा मकसद होता है कि उसकी अपनी एक उम्मीद होती है कि वो एक ऑर्गेनाइजेशन बना सकता है या उसकी कैपेसिटी है कि कुछ बहुत बड़ा इंडस्ट्री खड़ा कर सकता है, वो कैपेसिटी हम उससे छीन लेते हैं और उसको हम छोटे मोटे ट्रॉफियाँ दे के, उसको हॉनर करके, उसको जो है बहला के उसको उसी डायरेक्शन में डाल देते हैं। यही बहुत बड़ी गलती हो रही है हमारे कौम में। हम दूसरे कौमों में देखें तो लोग जो है 18 और 20, 25, 30 की उम्र में लोगों को इतना सारा स्किल सेट देते हैं, उनको इतना मौका देते हैं कि बिज़नेस को ट्राई किया जाए, उनको हर तरीके से सपोर्ट दिया जाता है। वो रिस्क लेने की एपिटेट उनकी ज़्यादा रहती है उस वक्त, तो कोशिश करते हैं कि कुछ करें। तो इस वक्त जो है हम लोग उनको उस वक्त को जो है हम लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। तो इस पर आप लोगों से गुजारिश है, आप लोग यहाँ पे हैं तो इस पर गौर फिक्र करिए और कोशिश करिए कि हम ऐसे इदारों को समझाएं कि वहाँ पे जो है रिटायर्ड लोगों का काम है। एक्चुअली जो लोग रिटायर हो जाते हैं, जो बिज़नेस कम्युनिटी से बहुत सारा पैसा वैसा कमाने के बाद अपने बीवियों का, अपने घर वालों के, अपने फैमिलीज़ का इस्तेमाल करके वो लोग जो है इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, डोनेशन और चैरिटेबल हाउस को। यंगस्टर्स को हम इससे दूर रखें, इसका बहुत बड़ा नुकसान है कौम को। तो कोशिश करें कि आज के बाद आप लोग भी इसके ऊपर फिक्र करें कि यंगस्टर्स को जो है सही डायरेक्शन, सही रास्ता दिखाना हमारा फ़र्ज़ है। अगर ये हम नहीं करेंगे तो बड़ी मुश्किलात हम लोग को आगे आके हमको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि एक कंट्री हमारी जो है यंग कंट्री है, हमारी यंगस्टर्स का पार्टिसिपेशन अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नहीं है तो हमारा जो है एक बहुत बड़ा पिलर जो है गिर जाएगा और इसका जो है बाकायदा इसका नुकसान हम सारे कम्युनिटी वालों को, हम सबको, हमारे नेक्स्ट जनरेशन और नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन तक उस पर असर करेगा। तो इस पे आप तवज्जो दें। और दूसरा एक मामला है जहाँ पे हम लोगों को एक और कोशिश करना है कि वी हैव टू क्रिएट मोर इंक्यूबेशन सेंटर। देखो, मैं एक बात तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ, हमारे यहाँ जितनी मस्जिदें हैं उतने मस्जिदों की तादाद में आप इंक्यूबेशन सेंटर्स खड़ा कर दो, तो इंशाअल्लाह हमारे यहाँ गरीबी और ये इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे हैं, जिस पे हमको ताने भी मारे जाता है कि भाई हम लोग काम नहीं करते सही तरीके से, हम लोग कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ों हम बाहर आ जाएंगे इंशाअल्लाह। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जितने इंक्यूबेशन सेंटर्स हम बना सकते हैं वो बनाएं, और मस्जिदों की जितनी तादाद है उतनी तादाद में इंक्यूबेशन सेंटर्स खड़ा करें। अगर जितनी आप इंक्यूबेशन सेंटर खड़ा कर देंगे तो यूथ और बिज़नेस कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ जाएगा और हमारे मुस्लिम कम्युनिटी में अवेयरनेस बढ़ जाएगा। इस अवेयरनेस की वजह से और इसकी जो स्किल डेवलपमेंट और जिससे स्ट्रैटेजी जो हम लोग वहाँ पे बनाएंगे, उसका फ़ायदा जो है हर एक मोहल्ले में, हर एक इदारे में, हर एक जगह से छोटा बड़ा इदारा उसका फ़ायदा उठा सकता है और उससे आगे क्यों करके अपना डायरेक्शन ले सकता है इंशाअल्लाह। तो ये मेरी दूसरी गुजारिश है कि आप कोशिश करें कि यूथ को जो है सही डायरेक्शन दें। दूसरा जो है मस्जिदों के जितने तादाद हैं उसके इक्वली वी हैव टू क्रिएट आर
incubation centers to make sure that we develop businesses. आज की तारीख में एंटरप्रेन्योरशिप को बनाना है. एंटरप्रेन्योरशिप एक ऐसा प्रोडक्ट हो चुका है कि इस प्रोडक्ट के अगर जिस कंट्री में इस प्रोडक्ट की कमी है वो कंट्री जो है स्ट्रगल करता है. ठीक है, आज सऊदी में उसकी कमी थी तो ऑयल और गैस का एक इंडस्ट्री था लेकिन एंटरप्रेन्योरशिप का कमी था, तो आज जो है उसके ऊपर उनको तवज्जो दिया गया. तो इस पे क्या हो रहा है कि इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड. सिमिलरली ये हर एक के ऊपर लागू होता है, एक देश के ऊपर लागू होता है, एक स्टेट के ऊपर लागू होता है, एक कम्युनिटी के ऊपर लागू होता है, एक अपनी सोसाइटी के ऊपर लागू होता है. तो जहाँ पर भी हम हैं वहाँ पे हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम हमारे तरफ से ये कैपेबिलिटी हम क्रिएट करें कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्रेन्योरशिप को बनाएं. अब दूसरा आता है कि भी एंटरप्रेन्योरशिप बनेगा कौन. अब हर कोई एंटरप्रेन्योरशिप बन जाएगा तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए एम्प्लॉयज़ कौन रहेंगे. ऐसा कभी नहीं होता है. इस जनरेशन का एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है कि आप जितने मुर्गे देंगे उतना अंडा देगा, उतना अंडा देगा उतना मुर्गे मिलेगी आपको. तो दोनों का रिलेशन जो है कभी ख़त्म नहीं होने वाला. तो आप दिल खोल के आप मुर्गे बनाने की तैयारी पे लग जाइए और क्रिएट करें इतने एंटरप्रेन्योरशिप हमारे अपने कम्युनिटी में और अपने आसपास क्रिएट करें. छोटे से छोटा बिजनेस है, बड़ा से बड़ा बिजनेस कारोबार करना बहुत ज़रूरी है. ये तो हमारी सुन्नत में भी है. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है जब नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत दिया उसके पहले उनको जो है एक कारोबारी बनाया, उनको एक तिजारतगार बनाया, उनको जो है अमीन और सादिक बनाया, उसके बाद में उनको नबूवत से नवाजा. तो ये एक बहुत बड़ा सुन्नत भी है और सुन्नत की तरफ आप बुला रहे हैं वो भी एक बहुत बड़ी इबादत है. तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग कोशिश करें कि जितने भी लोग आपके आसपास हैं सबको एंटरप्रेन्योर बना दें. आपके घरों में अगर समझो 10 लोग हैं तो 10 लोगों को बोले कि कुछ ना कुछ बिजनेस करें. इसका एक मकसद है. क्या होता है देखो, आप अगर लोगों को देख के अगर जलते रहें, लोगों को देख के अब हम तारीफ़ें करते रहे कि अभी वो लोग कर रहे हैं, वो लोग देखो इतना बड़ा इंडस्ट्री बना लिए, तो इससे आप एंटरप्रेन्योर नहीं बनेंगे. आप समंदर को देख के तैर नहीं सकते. आप नदियों को देख के और स्विमिंग पूल, आप 5 स्टार होटल में जाइए और स्विमिंग पूल को देखते रहिए 3 दिन, आप स्विमिंग नहीं कर पाएंगे. आपको कम से कम 3 घंटा स्विमिंग पूल के अंदर तैरना पड़ेगा. पानी में उतरेंगे तो ही तैरेंगे आप. तो पानी में उतरना बहुत ज़रूरी है. आप अगर नहीं अब समझो कि आपके आसपास कोई उतर नहीं रहा है तो उसको धक्का दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वो थोड़ा दिन तैरेगा, अपने आप कोशिश करेगा. अगर तैर गया तो अच्छा है तो उठा ले, नहीं तो डूबने से बचाने के लिए एमए जैसे इदारे हैं, IACC जैसे इदारे हैं जो उनको लिफ्ट कर लेंगे. लेकिन कम से कम आप उनको छलांग मारने का हौसला जो है उनको देना चाहिए आपको, और उनको ये उम्मीद जगाना चाहिए कि वो एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं. तो ये मेरी गुजारिश है आप लोगों से कि लोगों के ऊपर कोशिश करें कि इन लोगों को जो है प्रैक्टिकली इनको एक एंटरप्रेन्योर बनाना है. दूसरा एक बहुत बड़ा ये है कि एंटरप्रेन्योरशिप जब आप बात करते हैं, लोग जो है थ्योरेटिकल रिसर्च ये डॉक्यूमेंट्स लेके बैठेंगे. क्लासरूम में एंटरप्रेन्योर नहीं बनता है, ये हकीकत है. क्लासरूम में आप सीख सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, आप कितना चाहे आप इल्म ले लो एकेडमिकली, पर एंड ऑफ द डे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज जब मिलेगी, जब आप इंडस्ट्री के साथ मिलेंगे, आप उसके साथ घुसेंगे और उसमें काम करेंगे, जीतेंगे हारेंगे, कुछ होता रहेगा आपके साथ में. यू विल फेल, यू विल सक्सीड, बट यू शुड नॉट गिव अप. नो, एक अच्छा सा एक डायलॉग है कि नो मैटर हाउ ऑफन वी फॉल, इट ऑल मैटर्स हाउ क्विकली वी राइज. तो कितने बार आप गिरेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अब कितना जल्दी उठेंगे उससे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो आप कितने जल्दी उठ के चलेंगे, कितने बार चलेंगे, उतना जल्दी आप जो है इंशाअल्लाह एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बनेंगे. गिरने का नंबर मत गिनिएगा, गिरना ज़रूरी है. बच्चा जब रेंगता है तो गिरता है, तो ये रेंगता है, लेकिन बाप जो है बच्चे के गिरने का काउंटिंग नहीं करता है. उसको रेंगते की तरफ देखता है, तो उसके बाद चलने की तरफ देखता है, फिर वो दौड़ते हुए देखता है. गिरने का कभी गिनती नहीं रखता है. कभी बोलता नहीं कि बच्चा गिर गया, बच्चा बोलता है बच्चा दौड़ गया. तो ये है हमारे यहाँ, ये चीज़ को आपको लेके आना चाहिए कि बच्चों को, हमारे कौम में लोगों को जो है दौड़ाना है. वी हैव टू मेक श्योर दैट they should run no matter how often they fall. What it matters is how quickly they rise and they walk. So kindly keep this in mind, that so that we motivate our people to walk on the street, try to acquire whatever capacity they have in that new opportunities they can acquire. That is something which we need to put in their minds, that from now onwards they should focus to become entrepreneurs. And the most other important thing which I would like to bring it to your notice is we have this कंसर्न्स लाइक हम लोग जब एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करेंगे तो हमको पैसों की ज़रूरत है, हमको ये सपोर्ट चाहिए, सोल्यूशन चाहिए, टेक्नोलॉजी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए. ये सब चीज़ें जो है बहाने हैं. एक्चुअली ये सब चीज़ें हमको रोकती हैं. आप अगर
जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन को देख लिए, उनकी हिस्टोरिकली और उनका बैकग्राउंड देखिए, तो उन लोग सारे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके, सब कुछ तैयार करके, पैसे वैसों के साथ नहीं उतरे। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। हमारा खुद का इदारा है एसीसीबी। जब हम शुरू किए थे, जीरो पे स्टार्ट किए थे, जीरो फंड्स। बहुत लोगों ने रोका हमको कि भाई ये स्टार्ट मत करिए, आपके पास पैसे नहीं है। तो हम लोगों ने स्टार्ट किया। आज 2.5 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह हमने करोड़ों रुपए का काम किया। कभी भी हम देखें तो हमारे पास ये प्लान नहीं था कि हमारे पास पैसा इकट्ठा करें फिर हम ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करें। तो ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे लोग जुड़ते गए, पैसे भी आते गए और हम अपना काम भी अंजाम देते गए। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, आप हौसला आगे बढ़ाइए। वो बोलते हैं ना, हौसला ना छोड़, हौसला ना छोड़, कर सामना जहान का, हौसला ना छोड़, कर सामना जहान का, बदल रहा है देख रंग आसमान का। तो ये जो है, आसमान का रंग बदल रहा है, आप हौसला मत छोड़िए। आप हौसला बढ़ा के रखिए और कोशिश करिए, सामना करिए इस जहान का। तो इंशाअल्लाह आप जब वो आसमान का रंग बदलेगा तो आपकी तकदीर ज़रूर बदलेगी उसके साथ। मेरे वक्त तो बहुत कम है, मुझे बहुत कुछ बोलना है, मेरे पास वक्त नहीं है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि आज की तारीख़ में इतना बड़ा और एक्टिविटी को, मतलब इन लोगों ने इतना बड़ा इवेंट को इन लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं। मुसलसल कोशिश करिए कि जिस जिस भी गैदरिंग में आप खड़े हो, आपके आसपास 50-100 जितने भी लोग हैं, सबको देख के मुस्कुराएं। ये बहुत बड़ी सुन्नत है और इसका बहुत बड़ा राज है, बिजनेस का बहुत बड़ा सीक्रेट है। आप अगर मुस्कुराएंगे, दिल से मुस्कुराएंगे इंशाल्लाह, बिना फ़ायदे के। ये मत सोचिए कि भाई एक आदमी जो मुस्कुराते है तो दूसरे को लगता है कि मेरे से खर्च मांगेगा तो वो भाग जाता है। एक यकीन रखिए कि बिजनेस चैम्बर की जब एक्टिविटी होते हैं, लोग खर्च नहीं मांगेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ कि कोई आपको मुस्कुरा के, आपको डरना नहीं है। मुस्कुराइए दिल खोल के, और जब मुस्कुराएंगे आप इंशाल्लाह, तो आप उनके साथ में डिस्कस करेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ क्लिक हो जाए। क्या मालूम किसके मुस्कुराहट के पीछे जो है एक सोने का खान है। किसको पता है कि लाखों का वो कारोबारी है जो मुस्कुराने के बाद आपके साथ में शेयर कर लें, आपका भी जो है किस्मत चमक जाए। तो कोशिश करिए कि आज सबके साथ आप मुस्कुरा के बात करें, कम से कम एक बार मुस्कुराएं। मैं यकीन के साथ आपको बोलता हूँ, 10 लोगों से आप मुस्कुरा के बात करेंगे तो आपकी 10 लाख की तो बिजनेस पक्की हो जाएगी इंशाल्लाह। तो फिर मैं आखिर में आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि इनका जो ये जो एक्टिविटी है मैंने शुरू किया है, इसको यहाँ पे रोकिए मत। ये शुरुआत है, हमको इसको अंजाम तक लेके जाना है। 5 ट्रिलियन का टारगेट है हमारी कंट्री के इकोनॉमी का। हम 20% होल्ड करते हैं, तो हमारा 1 ट्रिलियन का टारगेट होना चाहिए ना, 1 ट्रिलियन का। So let us take this oath today that we will have a vision of creating our community contribution of $1 trillion economy in this next 3 or 4 years. At least you have to have a target. हमारी खुद की जो है 3 या 4 साल में हमारा कम्युनिटी का जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन होगा, और हमारा इकोनॉमिक का जो ओवरऑल बजट, जो ओवरऑल टारगेट जो 5 ट्रिलियन का है, उसमें 1 ट्रिलियन हमारा होना चाहिए, क्योंकि हम 20% इस कंट्री में हकदार हैं और हमारा हक उसमें भी होना चाहिए इंशाल्लाह। तो आज ये नीयत के साथ उठिए और जोश के साथ उठिए। अपना हौसला और अपना उमंग जो है आप आगे बढ़ा के रखिए। अल्लाह ताला ज़रूर आपको साथ देगा, आप ये यकीन रखिए। ये मैं जैसे इदारे जो है आपके साथ खड़े हैं, और आज जो है ऐसे बहुत सारे इदारे इंशाल्लाह बनेंगे। हमारी भी उम्मीद है, हम भी एक छोटा इदारा रखते हैं जिसका नाम है IACCB, जिसके भी 5000 मेंबर के आसपास हैं। इंशाल्लाह हम भी ऐसे इवेंट्स ऑर्गेनाइज करेंगे आप लोगों के साथ, आपके मेहनत, आपके मदद के साथ इंशाल्लाह, और कोशिश करेंगे कि कम्युनिटी को अपलिफ्ट करें और उसमें कंट्रीब्यूट करें। और आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग भी IACCB का एक स्टॉल है बाहर, और उसको विज़िट करिए और कोशिश करिए कि हम लोग कुछ एंटरप्रेन्योरशिप का एक लाइव प्रोग्राम जो है हम कंडक्ट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें जो है ट्रेनिंग के साथ साथ में हम रियल टाइम हीरोज़ को रिप्रेजेंट कराएंगे। तो एक कॉन्सेप्ट है जो यूनिक कॉन्सेप्ट है, इंशाल्लाह एक इनोवेशन आएगा उसमें। कोशिश करेंगे कि कुछ नई चीज़ हम उनको डालें, नई चीज़ को सिखाएं। हम हमेशा कोशिश करते हैं कुछ नया करें, ये हमारे अंदर एक पैशन है, ये जोश है, जिसको जुनून है, जो हमको आज IACCB को खड़ा रखा है। इस जुनून के साथ हम इस इवेंट का भी प्लान कर रहे हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि उसके लिए आप रजिस्टर करें, वो फ्री प्रोग्राम है। हमारा कोशिश मुसलसल यही रहता है कि हम जितना हो सकता है फ्री में दें हमारे अकाउंट को इंशाल्लाह। तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि फ्री में दें। तो आप लोगों से गुजारिश है, आप रजिस्टर करें, और इन्हें इंशाल्लाह ये कोचिंग, एक लाइफ टाइम कोचिंग हमारा प्लान है एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। तो इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। और हमारा जो इदारा है वो उसका वेबसाइट भी है IACCB.org, आप उसको भी विज़िट करिए। मैं MIA वालों को फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ।
उन लोगों ने IACCB को ये इस काबिल समझा कि उनके साथ में जोड़ ले इस इवेंट में, और उनके खासकर उनके प्रेसिडेंट को और उनके काउंसिल मेंबर्स को हमारे तरफ से शुक्रिया, और हम आप लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, मुबारकबाद देते हैं इस चीज़ को, इस लेवल में, इस साइज़ में इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। सच में कोई दो राय नहीं है, आपने शेर दिल काम किया है। यू डिज़र्व ए बिग अपलॉज। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर।